you very much for the wonderful introduction. Good afternoon, everyone. Heartiest welcome to the second day of 8th Global Literary Festival Noida 2022. तालियों में जोर. Fantastic. आगे कदम, आगे कदम, आगे कदम. मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम. पथ बंद है पीछे अचल और पीठ पर धक्का प्रबल. मत सोच कर ले फैसला, ले बाहों में उत्साह भर. जीवन समर के सैनिकों, संभव असंभव को करो. कण कण निमंत्रण दे रहा, आगे कदम, आगे कदम. What I'm trying to tell you in these two lines, I've used Aage Kadam 3 times. That look straight, move forward, and be positive. This should be the attitude in life, and that's the reason then only you will be able to achieve something in life. The way today my guests on this dais have done a commendable job, and they are here right on the dais of Marvel Studio. Let's give a big hand to all the dignitaries on the dais. इतने सारे लोगों के लिए इतनी कम तालियां, कमाल कर. Such a powerful board, and the claps they must match to that. मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम. What I'm trying to tell you here, it's very important to have a sense of sacrifice. I don't say compromise. There's a very thin line between compromise and sacrifice. But have that sense of sacrifice. Unless and until you have that sense, you will not be able to move forward, because this is what our tradition, method, culture has taught us in India. And we have to have that kind of a sense all the time. Mitro daro balidan ke path par kadam. Path band hai piche achal. The fact is that any work you're going to start, any new work you're going to start, suddenly you find it's difficult, it's impossible, and people will start criticizing through one or other reason. But then you have to be adamant, you have to have a very strong determination, you have to make up your mind and create a wonderful mindset for yourself to jump into that affair without any second thought, if you have the conviction yourself for that particular job. Representative of the media, dear friends, as a foreign ambassador, as ambassador of Venezuela to India, I am very pleased to be here, and when I received the invitation of my dear friend Sandeep ji, I thought of it will be a great moment for me to talk a little bit about what it means reading for the Venezuelan people. Because in this type of events, when you see a foreigner representative, an ambassador, you look at the ambassador like somebody who comes from another culture, from another world maybe, so far away. Venezuela, South America, 28 million inhabitants in my country, very small. Maybe any small state of India will be bigger than Venezuela itself. But in Venezuela, the importance of reading has been present since the beginning of a transformation process that was started by President Hugo Chavez when he became president in 1998. आज जो फेस्टिवल है आप आए हैं, क्या एक्सपीरियंस किया? ओटीटी पे काफ़ी चर्चा हुई, क्या समझते हैं ओटीटी के महत्व को, आप क्या कहना चाहिए? ओटीटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप बुक्स अच्छी पढ़ते हैं तो आप अच्छा कंटेंट निकाल के कुछ बना सकते हैं. आप पढ़ेंगे नहीं तो कंटेंट कहाँ से आएगा? और पढ़ने से इनरिचमेंट तो होती है, सोल की होती है, इमेजिनेशन की होती है. फिर आप अपना लिखिए, अपना कुछ बनाइए, अपना कुछ करिए. तो आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. कई बार आप ओटीटी सीरीज देख के बहुत इंस्पायर हो जाते हो. तो मैं ये नहीं कह रही वो गलत है या ये गलत है, दोनों ही अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. देखिए, जो ये प्रोग्राम आज हुआ है और जिसके तहत ये चल रहा है, ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल के तहत, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं हर साल आपके इस फेस्टिवल में आ रहा हूँ, और हर साल ये बहुत आगे जा रहा है, बहुत ऊंचे जा रहा है. और मैं कहता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं. आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 46 ईयर्स, और हम लोगों को उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी. तो यू आर वेरी लकी. बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आप इस तरह का आपको एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, और संदीप मारवाह जैसा लीडर मिल रहा है जो आप लोगों के बारे में सोचता है. 8th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आए, क्या कुछ कहेंगे? ओटीटी पे काफ़ी चर्चा हुई, क्या समस्या आपके नज़रिए से ओटीटी के लिए? तो चर्चा ये थी कि ओटीटी के माध्यम होने से, पॉपुलर होने से क्या रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं.
तो मैंने ये कहा कि कम तो हो गई OTT के नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम के होने से रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं। बिकॉज आजकल यंगस्टर्स, लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक फॉरवर्ड, इस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो रीडिंग हैज़ बिकम लेस। रीडिंग, वॉचिंग न्यूज़ चैनल्स, ये सब जो चीज़ें थी पहले, तो पहले से बहुत कम हो गई हैं। बट आई एम सेइंग दैट it does not mean that you can't have a OTT platform teaching you. Students and the youngsters will have to divide time between reading, getting knowledge and watching entertainment. Entertainment is one aspect of your life. It's not your life. It's very important कि आप बाकी जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, इसके बारे में पढ़ें या टीवी पे न्यूज़ आइटम्स में देखें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। A great experience. I discovered great students, a great school, and an excellent management of art school. Great. So, what do you think literally? About literary, I think it is my thought that we are in a digital era, but we must forget our roots. A simple advice: read. A book is a journey. And first step is a journey, and depends on you when and where you want to travel. Don't tell me Bahamas. It's just spiritual. What do you say about Sandeep Markar? Is a great person of culture. I admire him very much. I am here because of his invitation, because I respect him and I admire. के प्रोग्राम का थीम था OTT समाज पर इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का ये दूसरा दिन है और कल की तरह ही आज उतना ही ज़ोरों पे जोश है और तांता लगा हुआ है। कल भी तकरीबन 3-4 हज़ार लोग यहाँ पर फेस्टिवल का हिस्सा बने। आज भी मुझे लगता है कि इतना ही कुछ नंबर हो जाएगा और कल हम लोगों ने तकरीबन 14 इवेंट पार किए और आज तकरीबन 12-13 इवेंट सुबह से लेकर शाम तक होंगे, जिनमें विभिन्न किस्म की एक्टिविटीज़ की जाएंगी। अभी ही हाल में जो सेमिनार ख़त्म हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने इस बात की चर्चा की कि OTT के आने से क्या पढ़ने लिखने पे प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, कहीं ना कहीं हर चीज़ का असर होता है। wherever there is an action there is a reaction, ये एक पुरानी कहावत है। जब भी कोई हरकत होती है तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है और सबसे बड़ा जो असर हुआ है वो खुली भाषा का हुआ है कि OTT के पास क्योंकि कोई लगाम नहीं है बाकी टेलीविज़न चैनलों की तरह, और दूरदर्शन तो खैर है ही सरकारी, तो बहुत सारी खुल के भाषा सामने आ रही है। जो गली मोहल्ले की भाषा हुआ करती थी वो भी लोगों को सुनने, देखने और पढ़ने को मिल रही है। तो यहाँ जो है ज़रा सी तकलीफ़ हो रही है कि ये देश जो अपने संस्कारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सारी दुनिया में मशहूर हुआ है, क्या हम अपनी संस्कारिक भाषा भूल जाएं? ये सवाल था और इस पे बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई। लोगों ने दोनों तरफ की बात की क्योंकि आज़ादी है इस मुल्क के अंदर बोलने की, हर आदमी अपनी विचारधारा को पब्लिक के सामने रख सकता है और दोनों तरफ की आपको ऑडियंस मिलती है। कोई पॉजिटिव में बोलता है तब ताली बजती है, कोई नेगेटिव में बोलता है तब ताली बजती है। तो हमारा तो काम ऑर्गेनाइज़ करना था, जो एक बहुत शानदार सेमिनार अभी ख़त्म हुआ है। उसके साथ ही हम लोगों ने अभी स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी की एग्जीबिशन की भी इनॉर्ग्रेशन की है। बहुत खूबसूरत चित्र हमारे AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी ने यहाँ पर पेश किए हैं। उनको देखने के बाद यहाँ पर जो वेनेजुएला की एम्बेसडर मौजूद थी और बम्बई से भरत जी, जो कि चर्चित एडवर्टाइजिंग के इस वक्त सबसे बड़े नाम माने जाते हैं, उन्होंने बेहतरीन तारीफ़ की है और मुझे लगता है कि वाकई में सारे फ़ोटोग्राफ्स इतने खूबसूरत हैं कि इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि हम जल्द ही अपनी एक कॉफ़ी टेबल बुक भी लाएंगे। चर्चा की गई, क्या लगता है कि समाज पे कितना प्रभाव डाल रहा है OTT प्लेटफॉर्म? बहुत अधिक प्रभाव डालता है, मेरे जैसे लोगों पे भी प्रभाव डालता है। मैं आज भी उतना ही एक्टिव हूँ जितना पहले था आप लोगों की एज में। मीडिया का बहुत प्रभाव है, मीडिया ड्राइव्स द पीपल, उनकी थिंकिंग को बदलता है और वो बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि मीडिया थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आज आपकी किताब का भी विमोचन किया गया, हाँ। क्या कुछ कहेंगे किताब में क्या है, किस तरह की किताब
किताब में मेरे ट्रैवल आर्टिकल्स हैं। मैं शुरू से मेरे को शौक़ रहा है यात्राएं करने का, भारत के अंदर, भारत से बाहर, कई देशों में, और बहुत पहले से रहा है। लेकिन बाद में मैंने, और कैमरा मैं हमेशा साथ रखता था, बाद में मैंने महसूस किया आई कैन राइट। तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा 3 कैनेडियन ब्यूटीज़ ऑन विजिट टू कनाडा। ये 3 शहरों पर है। तो वो एकदम से एक इंग्लिश मैगज़ीन में पब्लिश हो गया। मुझे लगा मैं भी लिख सकता हूँ, और फिर मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ।